Hello friends, welcome to Dare to Do. So guys, today I am here with my second video from political science and the chapter name is New Centers of Power. The reason behind why I am making this video is that I want to provide every student with short summary of the chapter, and also I need to provide 1 markers important questions, and that will surely help you out. Now guys, we are going to read some basic facts. After the disintegration of Soviet Union in 1991, alternate centers of political and economic power along with America's dominance emerged. After the Second World War, the Organization of European Economic Cooperation was established by America. अमेरिका ने इसे establish किया था under the plan that is known as National Plan. After the collapse of Soviet bloc, European Union was established in 1992. This is very important. Mark it. It has its own flag, its own national anthem, its founding date, and its currency. 14 European Union was the world's largest economy in 2005. So mark this that 2005 तक वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी जो थी वो यूरोपियन यूनियन थी. इट हैड अ जीडीपी ऑफ मोर देन 2 trillion in 2005. In US dollar it is 2 trillion in 2005. Its shares of world trade in 3 times larger than that of US. US से 3 times thrice जो इसकी वर्ल्ड ट्रेड था वो ये करता था. इट्स करेंसी द यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर. एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन that is ASEAN was established in 1967 by 5 countries of this region: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. By signing they have signed Bangkok Declaration. उन्होंने बैंकॉक डेक्लेरेशन को साइन किया था और एशियान जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था. और इसके अंदर कितनी कंट्रीज थी? वी हैव 5 कंट्रीज दैट इज इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. नाउ कमिंग ऑन टू next slide. In 2003, ASEAN moved along the path of establishing an Asian communities. Before that, I want to discuss one important point, that is जो हमारा एशियन कंट्रीज थी उन्होंने अडॉप्ट किया था एशियन वे. और व्हाट इज एशियन वे? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज इनफॉर्मल and very cooperative. This is very important point, students. Please mark in your book. If you are having book, then please mark there on page number on the very first page of this chapter. You can see from in second paragraph that it is written ASEAN way is a form of interaction that is informal and very cooperative. Coming on to, in 2003, ASEAN moved along the path of establishing an Asian community comprising 3 pillars. इनके क्या नाम थे? वो जो 3 उन्होंने पिलर्स स्टैंड किए थे एशियन कम्युनिटी ने, वो क्या थे? एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, सेकेंड इज एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, and the third is ASEAN social cultural community. Students, जब आपके रिटन फॉर्म में पेपर आएगा, जब क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने होंगे, जब आपका फाइनल्स होंगे, तो उसके अंदर आपको जो एग्ज़ामिनर है वो आपसे ये पूछ सकता है कि उसके क्या 3 एशियन कम्युनिटी ने कंप्राइज की थी, क्या क्या वो कम्युनिटीज़ थी. तो आपको लिखना है एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी and the social cultural community. This is very important point. और इसके अंदर एटलीस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है.
बट क्योंकि आपके सेकेंड टर्म के अंदर नहीं आ रहे अभी क्वेश्चन आंसर्स, तो ये आपसे पूछा जा सकता है इन MCQ फॉर्म और इन फिल इन द फॉर्म कि क्या 3 कंप्राइजिंग कम्युनिटीज़ थी. तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड टूवर्ड्स दिस 3 कम्युनिटीज़. दिस विल हेल्प यू during the during giving while giving the exam. The very next point is Rajiv Gandhi's visit to China. राजीव गांधी जी ने चाइना में विज़िट की थी इन दिसंबर 1996 के अंदर. उनका जो मेन एजेंडा था फॉर विजिटिंग देयर वाज कि हमारी एक इंडिया और चाइना का ट्रेड जो है वो ग्रो हो, वो एक बायलैटरल ट्रेड हो हमारा इंडिया और चाइना के बीच में. हमारी जो ट्रेड है वो इंक्रीज़ हो, उसमें ज़्यादा पैसे हम अर्न कर सकें. और द वेरी नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर दिस इज़ इंडियाज़ विजिट of Chinese president in 2014 establish a continuous conference on the aspect of bilateral relationship between both the countries. that मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो relationship bilateral चाहते थे. Both the countries showed their interest for mutual acceptance and also promised to solve pending issues in an active manner. तो जो कंट्रीज़ थी, कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स ने ये जो चीज़ें हैं उनके ऊपर हाईलाइट किया और उन्होंने ये बात बोला कि हमारा कोई भी पेंडिंग इश्यूज़ हैं, जो भी हमारी फ़ाइट्स हैं, जो भी हमारे इश्यूज़, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको बहुत एक्टिव मैनर के अंदर सॉल्व करेंगे और एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे इंडिया और चाइना के बीच में. Now coming on to few important MCQ questions. It could be MCQs also and it could be in a fill in the blanks form. और ज़रूरी नहीं है कि ये MCQ फॉर्म्स में आए या फिर fill in the blanks में आए, बट ये क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में भी आ जाते हैं. तो प्लीज़ रीड द चैप्टर वेरी प्रॉपरली. सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज what is the full form of LOC? Answer is line of control. Second question, under whose leadership did communist revolution start in 1949? So the answer is Mao. माओ की लीडरशिप थी जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था इन 1949 के अंदर. थर्ड क्वेश्चन सेज व्हेन डिड चाइना बिकम मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड? चाइना ने कब वर्ल्ड ट्रेड हमारे साथ स्टार्ट किया था? दैट इज़ इन 2001. फोर्थ क्वेश्चन, हु फॉर्म्ड सीज? सीज क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीज? फुल फॉर्म क्या है सीज की? वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और ये इट इज़ फॉर्म्ड बाय चाइना. चाइना ने इसे फॉर्म किया था. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीज? दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. It is special economic zone. Next we have what is seas. So we have to discuss in very short note that what is seas. Seas is a special economic zone. Trade barriers, laws and regulation of these areas different from each other of the country. Seventh question says when did China start open door policy? So आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि what is open door policy, तो आपको उसको भी आंसर देना है उसका कि open door policy क्या थी और कैसे किसने स्टार्ट की थी वो पॉलिसी. तो वो चाइना ने स्टार्ट की थी ओपन डोर पॉलिसी कि कोई भी कंट्री हमारे पास आ सकती है, हमारे कंट्री के अंदर अपना सेटअप लगा सकती है. और वो कब हुआ था? इट इज़ इन 1978. एट्थ क्वेश्चन सेज विच टू कंट्रीज ऑफ EU हैव न्यूक्लियर वेपन्स? किस दो कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे? दैट इज़ ब्रिटेन एंड फ्रांस. राइट द फुल फॉर्म ऑफ एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन.
This is the full form of ASEAN. What is ASEAN? Your 10th question says, what is ASEAN? ASEAN is a political and economical organization aimed primarily at promoting economic growth. Economic मतलब फाइनेंशियल, पैसों से ग्रोथ होती है उसको ये प्रमोट करता था, एंड रीजनल स्टेबिलिटी अमंग इट्स मेंबर, और इसकी रीजनल कैपेसिटी उसको इंक्रीज करना चाहता था, उसको स्ट्रेंथन करना चाहता था अमंग द मेंबर्स एंड द कंट्रीज, राइट. 11th question says about when was ASEAN established. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने आपको जब हम बेसिक फैक्ट्स को गो थ्रू कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि ASEAN जो है वो 1967 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था. आपसे स्टूडेंट्स बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. कई बार एग्जामिनर जो होते हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं स्टूडेंट्स को, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आपको बिल्कुल आपको स्ट्रिक्ट रहना है अपनी बुक से. आपको कोई और गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है. डोंट गो फॉर एनी अदर बुक्स, ओनली स्टिक टू NCERT. You will score good. That is my surety. The next 12th question says, which 5 countries establish ASEAN? So ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं हम कि कौन सी 5 कंट्रीज़ थी जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था, जिन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन भी किया था. दैट आर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड इस्टेब्लिश ASEAN. उन्होंने कौन सा साइन की थी डेक्लरेशन? दैट वाज बैंकॉक डेक्लरेशन. सो 13th question says about why was ASEAN established. ASEAN was established to accelerate the economic growth. अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ मनी वाइज वो रैंक में ज़्यादा होना चाहता था. वो चाहता था कि हमारी डेवलपमेंट इकोनॉमिकली बहुत हायर हो. फॉर सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, वो ये चाहता था कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे पास आएँ, हमारे यहाँ पर सेटअप करें अपनी कंपनीज़ का. हम किसी और कंट्रीज़ में जाएं, वहाँ पर अपनी कंपनीज़ का सेटअप करें, सो दैट कि एक वर्ल्ड ट्रेड बढ़े हमारा. वो प्रमोट करना चाहता था पीस एंड स्टेबिलिटी, जो हमारा 3rd पॉइंट कहता है, टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी. 14th question, what was proposed by Chinese Prime Minister Zhou Enlai? Zhou Enlai, Prime Minister of China, proposed the 4 modernization in the field of agriculture. एग्रीकल्चर में उन्होंने डेवलप किया था इंडस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री. अपने मिलिट्री को उसने स्ट्रॉन्ग किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन किया, अपने इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रेंथन किया. तो ज़ाओ एनलाई जो हमारे किसके प्राइम मिनिस्टर थे? चाइना के प्राइम मिनिस्टर थे. तो ये भी आपको याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना जो थे वो ज़ाओ एनलाई थे. 15th question, व्हेन डिड चाइना प्राइवेटाइज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर को उन्होंने कब प्राइवेटाइज कर दिया था? जिसके अंदर टैक्सेस और सर्विसेज टैक्सेस और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस ये जो होते हैं, ये कब उनके ऊपर लगने लग गए थे? कब प्राइवेट हैंड्स में चली गई थी एग्रीकल्चर चाइना की? इन 1982. 16th question says about when did China enter in World Trade Organization? China entered World Trade Organization in 2001. 2001 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसके अंदर एंट्री हो गई थी चाइना की. 17th question, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एशियन फ्लैग. क्योंकि आपको पता है यूरोपियन यूनियन का जो फ्लैग था वो भी डिफरेंट था, उसकी हर चीज़ डिफरेंट थी. उसकी करेंसी, उसका नेशनल एंथम, उसका फ्लैग, उसका सब कुछ अलग था. तो वी हैव टू डिस्कस इट. In the Asian flag, the 10 stacks of paddy, that is rice, represents the 10 Southeast Asian countries bound together in friendship and solidarity. The circle symbolizes the unity of ASEAN. 18th question,
What is the contribution of Japan in the budget of UN? United Nations के बजट में क्या contribution थी जापान की? That is of 20%. Who visited China in 2010? India's President Pratibha Devi Singh Patil visited China in 2010. Coming on to very important questions that are picture based question, or you can say it as cartoon based questions. इनका जो ये वेटेज जो होती है इन क्वेश्चंस की, वो होती है 5 मार्कर्स या फिर 4 मार्कर्स. जब हमारे पेपर्स होते थे, जब मेरे टाइम पे जब पेपर्स हुआ करते थे, तो 5 मार्कर्स के अंदर आता था ये क्वेश्चन. पर आई डोंट नो कि आपके टाइम पे स्टूडेंट्स कितने मार्क्स का आएगा ये क्वेश्चन. बट ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन होता है, तो इसको किसी को भी छोड़ के नहीं आना. इसको बहुत फिगराइज करो इस क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत मार्क्स जो होते हैं वो गेन करवा देते हैं स्टूडेंट्स के. जो कार्टून है वो हमारे को ये डिपिक्ट करता है कि आप इस कार्टून को देखो, इस कार्टून के अंदर आपको क्या बताया जा रहा है. ये एक मैसेज दे रहा है कि जो वर्ल्ड है, चाइना, वो एक ग्रेट इकोनॉमिक पावर उसके अंदर आ चुकी है, क्योंकि उसने कितनी सारी पॉलिसीज़ को गेन किया है. जैसे कि ओपन डोर पॉलिसी को उन्होंने गेन किया है. एशियान की कम्युनिटीज़ हैं जो सिक्योरिटी, सोशल कल्चर, इकोनॉमिक कम्युनिटीज़, उन्हों को गेन किया है. उन्होंने इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाए हैं, उनके साथ प्रॉमिसेस किए हैं, इंडिया और चाइना के एक अच्छे पीसफुल रिलेशन, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो कैसे कॉन्कर कर रहे हैं. ये सब कुछ आप इस कार्टून के अंदर देख सकते हो. स्टूडेंट्स, मेरी एक एडवाइस रहेगी आपको कि ये चैप्टर जो है वो आपके टर्म 2 के अंदर 8 मार्क्स कैरी करता है. तो प्लीज़ इस चैप्टर को, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, इसको रीड करो. चैप्टर को जितना आप चैप्टर को रीड करोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, आपको उतना ही नॉलेज गेन होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे आंसर्स, और स्पेशली MCQ फिल इन द ब्लैंक्स जो विदाउट ऑप्शंस आते हैं आंसर्स क्वेश्चंस, उनको आप अच्छे से कर पाओगे. क्योंकि अगर आपको चैप्टर का बैकग्राउंड पता होगा, उसका बेसिक पता होगा, तभी आपको अगर कोई क्वेश्चन आएगा तभी आप उसको आंसर दे पाओगे. वरना इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गेन गुड मार्क्स. सो प्लीज़ प्लीज़ स्टूडेंट्स, stick to the chapter, stick to the NCERT books, don't go anywhere. कोई और बुक को मत रीड करो. NCERT books are the best books and they will actually give you the right information, and your paper will be very good if you are going to read from NCERT. 20th question इसका जो है वो ये कहता है, which country is associated with the given cartoon? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है, which country is associated with the given cartoon? जो कार्टून दिया हुआ है आप उसको देखो कि ये कौन सी कंट्री को एसोसिएट कर रहा है. आंसर सेज दिस कार्टून इज रिलेटेड टू चाइना. ये कार्टून जो है वो चाइना से रिलेटेड है. सेकेंड क्वेश्चन, which are the two symbols in the given cartoon helps to identify the related country? क्या दो सिंबल ऐसे हैं कार्टून के अंदर गिवन जो आपको हेल्प कर रहे हैं कि ये आपको बताने में कि ये चाइना ही है. फर्स्ट इज द ग्रेट वॉल एंड द ड्रैगन आर द टू सिंबल्स मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद चाइना. थर्ड क्वेश्चन देखो आप इसका, व्हाट इज द मैसेज बीइंग कन्वेड इन द कार्टून? क्या मैसेज आपको मिल रहा है, क्या ये डिपिक्ट कर रहा है? तो थर्ड आंसर आप देखो, दिस कार्टून डिपिक्ट्स चाइनाज इकोनॉमिक राइज. ये कार्टून ये बता रहा है कि चाइना जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन हो गई है, उसकी इकोनॉमी के अंदर एकदम से बढ़ाव आया है, इंक्रीज हुआ है वो. So students, it's the end of the video. I hope that this is enough and that it will help you pass your exam and that you will obtain good scores. Students, मैंने इस पे बहुत efforts डाले हैं. मैंने सारे important और last year के कुछ papers देख के मैंने इन questions को डाला है. तो please इनको go through करना. You can take the screenshot.
अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिखिए. I will be more than happy if you will ask me any queries. I will help you out. And so keep watching my video. Do like, share, and subscribe. And for the latest updates, please hit the bell button down there. Thank you.